مسلم یوتھ لیگ کا فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ مقررین نے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کی اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر اسرائیل کی بربریت کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے اسرائیل کی حرکتوں کو انسانیت کے خلاف قرار دیا۔ اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور جنہوں نے مجھے دعوت دی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس حساس موقع پر یہاں ہم جمع ہوئے، ایسے موقع پر جبکہ پورا غزہ جل رہا ہے، آسمان اور زمین سے آگ برس رہی ہے، ایسے وقت میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں جبکہ ماؤں کی چیخنے کی آوازیں اب بھی ہمارے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ آج بھی 20-21 دن سے تاریخ عالم کا وہ گھناؤنا جرم ہو رہا ہے، اور آج کی اس دنیا میں جہاں ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ایسے موقع پر جہاں پوری دنیا کی نگاہوں کے سامنے قتل عام ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، یہ کوئی جنگ نہیں ہے دنیا میں، ہم نے کوئی تاریخ عالم موجود ہے، پورا اتہاس موجود ہے۔ کب بتائیے کہ حضرت آدم سے لے کے آج تک کی پوری تاریخ میں آپ بتائیے کہ کبھی جنگیں اتنی ہوئی، لیکن کسی جنگ میں ایسا ہوا کہ ساری دنیا کے لوگ مل کر ایک خطے پر اس طرح سے ٹوٹ پڑے ہوں؟ یہ جو جرم ہو رہا ہے یہ تاریخ میں بہت کم ہوا ہے۔ دیکھیے اس کے بعد پھر کربلا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب کربلا کے بعد کوئی کربلا، فلسطین کو 75 سال سے سب کہہ رہے ہیں کہ 75 سال سے ظلم ہو رہا ہے۔ کوئی ایک دن معین کیا تھا جب مسئلہ فلسطین کو ہم زندہ رکھتے، کیونکہ جس طرح کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، اور جہنم یہ بنا دیا گیا ہے کہ ادھر جو ہے ان کی کمزوری کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ العظیم۔ الجنت تحت ظلال السیوف۔ بھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے چھاؤں میں تلواروں کی۔ ہم نے افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں بھی اذان دی ہے، ہم نے کلیساؤں میں بھی اذان دی ہے، اور یہ کب دی ہے؟ حدیث مبارکہ الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے، حدیث ہے یہ۔ حامد علی اس کے سمجھے کہ صدر محمل پر یہاں نہیں چلتا، یہ تو غلاموں کی سرزمین ہے، اور اقتدار کی چوکھٹ پر ماتھا ٹیکنا معراج سمجھا جاتا ہے، لیکن انقلاب وہی برپا کرتے ہیں کہ پھونک ڈالے زمین و آسمان و مستعار، اسی خاکستر سے اپنا جہاں پیدا کرے۔ پہلے سب کچھ پھونکنا پڑتا ہے پھر جہاں پیدا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مخمل پہ چل کے حالات بدلیں، مخمل پہ دلال چلتے ہیں، حالات بدلنے والے نہیں چلتے۔ ابھی ایران کے تعلق سے بہت کچھ کہا گیا، اس پر بات نہیں رکھوں گا، لیکن آج جھبے اور خبے اماموں کو پہن کر لوگ مخمل پہ چل کے سمجھتے ہیں کہ ہم سچے مومن ہیں۔ یاد رکھیے کہ منافقت سے مومنی کردار نہیں چھلکتا۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرشد بھی ہو، افغان بھی ہو، ایران بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ کل ہی کی بات ہے، ہم نے ایک ریلی کا انتظام کیا تھا۔ فلسطین کا مسئلہ چار دیواری میں حل نہیں، مشتاق ملک کا یہ احساس ہے، بہت کلیئرٹی سے سن لیجیے، جو مسئلہ میدان جنگ میں شروع ہوا ہے میدان جنگ میں ہی حل ہوگا۔ یہ مسئلہ ٹیبلوں پہ حل نہیں ہوگا۔ سوری ٹو سے، جسٹس چندر کمار صاحب بیٹھے ہوئے،
जो मसला मैदान जंग में शुरू हुआ है वो मैदान जंग में ही खत्म होगा। दुनिया का सबसे बड़ा शैतान अमेरिका है और अमेरिका की शैतानियत के आगे लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। कुछ सामने से कुछ समझिए कि 10 पर्दा भी अमेरिका की बड़ी हिमायत में है। हम कोई मुस्लिम ममालिक का रोना भी नहीं रोते हैं, क्योंकि हम हुसैनी हैं, हम अहले बैत और करबला को मानते हैं, जहाँ सर कटते हैं सर झुकते नहीं। और जो करबला को मानता है वो मुस्लिम ममालिक पर नहीं रोता, क्योंकि करबला में 72 जो पेश हुए तो वो पूरी उम्मत को देखकर नहीं बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी को देखकर पेश हुए। तो जो अहले ईमान हैं वो फ़लस्तीन के साथ हैं, और जो समझिए शैतान के पीछे हैं वो फ़लस्तीन के साथ खुल कर नहीं है। और ये है कि हमको बड़ी शर्म आती है इनको मुसलमान कहने से। जैसे इकबाल ने कहा कि ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, तो यहूदी भी इनसे शर्माते हैं, ये ऐसे मुसलमान हैं। तो हिंदुस्तान में बहरहाल फ़लस्तीन का मसला इंतहाई अहम है, और गांधी से लेकर मोदी तक, महात्मा गांधी से लेकर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म तक पटरी से उतरे, फिर पटरी पर चढ़े वज़ीर आज़म, तो फ़लस्तीन की हिमायत में ये मुल्क खड़ा हुआ है। और हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान तो अक्सा को अपनी जान, अक्सा को अपना ईमान, फ़लस्तीन को अपनी जान समझते हैं। बहरहाल ये लड़ाई जारी रहेगी और हक़ इससे जीतेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज ये दुनिया जहाँ के तमाम मज़लूमों के लिए हुआ है, और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के और ख़ास तौर पर गज़ा के उन निहत्ते अवाम के लिए हुआ है जो दुनिया भर में मज़लूम करार पाए हैं। अभी आपने देखा कि 21 दिन से कोई दिन ऐसा नहीं है कि जहाँ हज़ारों की तादाद में बच्चों को, निहत्ते लोगों को मारा जा रहा है। तो ये आप 21 दिन से देख रहे हैं, तारीख़ की निगाहें 75 साल से यही मंज़र देख रही है, और वहाँ के रहने वाले 75 साल से मुसलसल ऐसे दिन देख चुके। उससे पहले से जब से ये लोग आए हैं इसलिए कि इनको भगाया जाए। आप देखें कि फ़लस्तीनी कई हिस्सों में बट गए, कुछ इसराइल में रह गए, कुछ जो है वेस्ट बैंक की तरफ उनको भगा दिया गया, और कुछ जो लोग मुकावमत कर रहे हैं, इन बेचारों का नाम है गज़ा। यहाँ के लोगों ने कहा कि हम छोड़ के नहीं जाएंगे, और इतनी सी पट्टी को पूरी दुनिया की ताकतें मिल के हटा नहीं पा रही। तो ये कितनी बड़ी बात है। आप देख रहे हैं इनका चेहरा जो खुल के आ गया है कि अमेरिका का जुल्म व तशद्दुद जो है खुल के सामने आ गया। ये लोग कह रहे हैं कि हम जो है वो टेररिस्टों को मार रहे हैं, और ख़ुद कह रहे हैं कि वो लोग तो अंदर हैं, तो फिर मार किसको रहे हैं आप कह रहे हैं कि हम जो है हमास के टेररिस्ट को मारने के लिए आए हैं, और ख़ुद कह रहे हैं कि टेररिस्ट तो यहाँ है ही नहीं, वो तो अंदर जो है सुरंगों में है। तो फिर सुरंगों में है तो ऊपर क्यों मार रहे हैं? तो फिर ये लोग और वो लोग कौन है? सवाल ये पैदा होता है कि ये जुल्म हो रहा है पूरी दुनिया की निगाहों के सामने, और सारे लोग खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हम और आप सभी तमाशाई बने हुए हैं। हम सबसे पूछा जाएगा, एक दिन ज़रूर सवाल किया जाएगा कि आप लोग जालिमों के साथ हैं या मजलूम के साथ हैं। कब्र में भी यही सवाल होगा, महशर में भी ये सवाल होगा कि आप किसके साथ। जिसके साथ जो रहेगा उसका हशर उन्हीं के साथ होगा, जो जालिम के साथ होगा उसका हशर जालिम, जो यजीद का साथ देगा उसका शुमार यजीदियों के साथ होगा, और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तायद में होगा उनका हशर व नशर जो है इमाम हुसैन। तो ये है दुनिया दो हिस्सों में। तो आप जो जुल्म देख रहे हैं, ये जुल्म जो है आपको बताया नहीं जा रहा है, वो तस्वीरें आपको दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए कि वो तस्वीरें देख लेंगे तो लोग जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो भड़क जाएंगे, जिस तरह से कई ममालिक के लोग भड़क चुके हैं। लेकिन जो है वो सारी चीज़ों को छुपाया जा रहा है। तो अल्लाह जो है उन पर रहम करे और हमें तौफीक दे कि हम उनकी तायद करें, जालिमों का साथ न दें, मज़लूमों का साथ दें। सारे जालिमों ने अपने चेहरे से नकाब कुशाई
कर ली है और बता दिया है कि हम कितने खूनखार दरिंदे हैं। उनका जुल्म लोगों की निगाहों के सामने, कौन टेररिस्ट है कौन नहीं है ये आपकी निगाहों के सामने, किसी को लेबल लगा देने से, टेररिस्ट कहने से कोई टेररिस्ट नहीं हो जाता और अपने को मुस्लिम कहने से कोई मुस्लिम नहीं हो जाता, बल्कि मुस्लिहीन हर फसादी और जनाब मुश्ताक मलिक साहब और जस्टिस चंद्र कुमार साहब और सीनियर सहाफ़ी हामिद शौकत साहब मौजूद रहे। आप सबके बयानों के बाद मुस्लिम लीग की जानिब से हमारे जो मीर हामिद अली हैं, हम लोगों ने करारदाद यहाँ पर की है कि जिस तरीके से इज़राइल फ़लस्तीन पे जो बम्बार्डमेंट कर रहा है, जिस तरीके से जुल्म कर रहा है मासूम बच्चों पर, औरतों पर, और हॉस्पिटल पे बम्बार्डमेंट हो रहा है, और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी जो है इसके खिलाफ कई रेजोल्यूशंस पास करने के बाद भी आज भी इज़राइल वॉर क्राइम्स में मुलविस है। तो हम इज़राइल के खिलाफ जो है सारे जो इज़राइली प्रोडक्ट है हम उसका बॉयकॉट करने की ज़रूरत है, और हम सब जो है आने वाले वक्त में जो है फ़लस्तीन के साथ आज भी खड़े हैं, आने वाले वक्त में भी हम खड़े हुए रहेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे मीडिया इस तरीके से बता रहा है कि भाई जालिम को मजलूम बना करके, मजलूम को जालिम बना करके जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, हमको हकीकत जानने की ज़रूरत है। अब जिस तरीके से नॉन अलाइंड कंट्रीज़ फ़लस्तीन कॉज के लिए जद्दोजहद करती रही है, हिंदुस्तानी जितने भी हुकूमतें आई हैं ये फ़लस्तीन कॉज के लिए ठहरे हुए रहे हैं। हम ये हुकूमत से भी जो है मुताला करते हैं कि वे सख्त से सख्त अल्फाज में ये इज़राइल की जो जालिमाना हरकत है उसके खिलाफ जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।